آج بھی ہم جوہر میں جو مارکیٹیں ہیں اس پر اور ان کے جو مارکیٹوں کے صدور ہیں ان کی دعوتوں پر میں آیا، اور آپ یقین جانیں جس مارکیٹ میں میں گیا ہوں ان کے صدور نے ایک لفظ ضرور کہا ہے، اور وہ یہ کہا کہ 22 سال ہو گئے اس مارکیٹ کو بنے ہوئے، آپ پہلے حکومتی نمائندے ہیں جو ہمارے پاس خود چل کر آیا۔ 30 سالوں میں ان کے پاس کوئی چل کر نہیں گیا، ان کی خیریت دریافت نہیں کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ٹیکسوں کی مد میں۔ کہیں پانی نہیں آ رہا، کہیں بجلی نہیں آ رہی، کہیں بجلی اور گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں، کہیں ٹیکس والے لوگ پریشان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے خاندان کا روزگار چلا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کوئی کام ہے تو بتائیں۔ اس نے کہا کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے سارے غم بھول گیا۔ 82 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں اپنی زندگی میں یہ موقع ملا کہ میں اپنے صوبے کے گورنر سے ہاتھ ملا رہا ہوں، اس کے گلے لگ رہا ہوں۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حکومتی وزیر یا گورنر یا چیف منسٹر لوگوں کے پاس چل کر جائے، ان کے درمیان بیٹھے اور ان سے مسائل پوچھے۔ بہت ساری مارکیٹیں ایسی ہیں جن میں آگ لگی، کوئی چل کر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے اور بٹھائے رکھے گا، میرا اپنی لوگوں سے، اپنی عوام سے یہ وعدہ ہے کہ میں خود چل کر ہر ایک کے پاس آؤں گا، ان کے مسائل سنوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میرے شہر اور میرے صوبے کے یہ جو نوجوان ہیں جو پریشان ہیں اپنے مستقبل کے لیے، پڑھ لکھ کر بھی کوئی شخص ہوٹلوں پہ کام کر رہا ہے، پڑھ لکھ کر ڈگریاں لے کے رائڈر بنا ہوا ہے، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک 16 سال ماں باپ نے تعلیم دلوائی تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے، جو کہ نہیں ہے۔ اسی لیے صحت اور تعلیم کے شعبے پہ میں نے اس گورنر ہاؤس میں بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ بڑی محنت کے بعد تمام کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ صرف سیکرٹری ہیلتھ اور اب چیف منسٹر کے پاس صرف چیف منسٹر صاحب کا ایک سائن چاہیے، اس کے بعد پورا سندھ 10 لاکھ روپے تک کا فری علاج کرانے کا مستحق ہو جائے گا۔ صرف ایک سائن، چیف منسٹر صاحب، صرف آپ کا ایک سائن اس شہر کے رہنے والے میرے مظلوم بھائی بہن بزرگ آغا خان ہاسپٹل میں جا کر 10 لاکھ تک کا علاج کروا سکتے ہیں۔ ایسا کمپریہنسو سسٹم بنا کے اسٹیٹ لائف کے ساتھ میں نے گھنٹوں لگائے ہیں، سہولت کارڈ کے والوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کی ہیں۔ اب یہ صرف چیف منسٹر کے ایک سائن سے پورے صوبے میں اور کراچی میں لوگ 10 لاکھ تک کا مفت علاج کرا سکتے ہیں۔ اگر چیف منسٹر صاحب یہ سائن نہیں ہوا تو یہ لوگ آخرت میں آپ سے ضرور پوچھیں گے، دنیا میں شاید ہم نہ پوچھ سکیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ صرف ایک سائن چاہیے۔ میری ویڈیو دیکھ لیں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ لیں، میرے سیدھے ہاتھ پر اسٹیٹ لائف کے سی او اور لیفٹ سائڈ پر سہولت صحت کارڈ کے ایم ڈی پاکستان کے دونوں کھڑے، اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کمپلیٹ ہے، صرف ایک سائن چاہیے۔ اگر وہ سائن چیف منسٹر صاحب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو آپ سب کا بیماری کا مسئلہ تو اللہ نے حل کروا دیا کہ 10 لاکھ تک کا جا کر آپ مفت علاج کرا لیں۔ یہاں تک میں نے محنت کر دی ہے،
अब चीफ मिनिस्टर साहब और आपके दरमियान है कि वो कितनी मेहरबानी आप लोगों पे करते हैं। अच्छे आदमी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ये काम करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मुझे पता है इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की क्या हालत है। मेरे कई बार कहने के बावजूद कि एक हफ्ते के लिए ये पुलिस वाले या कुछ थाने ही मेरे अंडर में दे दो, अगर वहाँ कोई बड़ी चोरी हो जाए, कोई वाकया हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो मैं गवर्नरशिप से रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक साल से जायद अरसा है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख लें, मैं तवातुर से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन नहीं मानी जा रही। आप लोगों के मोबाइल भी छिन रहे हैं, जाने भी जा रही हैं, आप लोगों की मोटरसाइकिलें छिन रही हैं। आखिरी में तंग आकर मैंने यही अनाउंस कर दिया कि जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई पिछले 3 महीने में, वो आके गवर्नर हाउस से ले जाए। और आज जिस शख्स की भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो इसलिए कि हम सियासी ऐलान नहीं करते कि ऐसे ही अनाउंस कर दिया और उसके बाद गायब। पहले मरहले में 3 महीने, लेकिन बाकी लोग मायूस ना हो, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरे साहिब सरबत लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम हर बार 3-3 महीने बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा शामिल नहीं है। ये मैं खुद और मेरे दोस्त मिलकर पहले मरहले में 1700 मोटरसाइकिलें 3 महीने में चोरी हुई हैं, उनके हवाले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जिसका मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल छिन गया है और वो अपनी करीम में काम करता है, कहीं राइडर है, रमज़ान आ रहे हैं, तो हमने कहा है कि हम एक टच मोबाइल भी उस शख्स के हवाले करेंगे ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। मैं ज़रा अज़ान के लिए कुछ देर की खामोशी कर रहा हूँ। आगे कैमरे हैं यार। आगे बुला लो सकते वाले भाई। मिलते हैं। बाजी थोड़ा अंदर होइएगा, बाजी बाथरूम को अंदर करिए, थोड़ा अंदर होइए।
बिस्मिल्लाह। कल मेरे पास वज़ीर सेहत, निगरां वज़ीर सेहत तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे ख़ुद ये कहा, उन्होंने सराहा कि आप ये कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 95 अरब रुपया हर साल सिंध गवर्नमेंट मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को देती है, और उनका हाल आप देख लें जिना और सिविल की इमरजेंसी में जाकर। सिर्फ 10 अरब रुपया साल का हमें स्टेट लाइफ को देना है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का ही एक इदारा है, जिसको 10 अरब मिलेंगे। हुकूमत सिंध का 85 अरब रुपया बचता है, और उसमें सिर्फ चंद हज़ार लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे पूरा सूबा फ़ायदा उठाएगा। और मैं बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट लाइफ सहूलत, सेहत कार्ड और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान आकर इस काम को करवा दूँ। लेकिन अगर ये नहीं होता या इसके पीछे कोई और वजह है, तो अब आवाम और सिंध गवर्नमेंट के हुक्मरान जाने। मैंने तो 6 महीने रात दिन ये कोशिश की। स्टेट लाइफ के CEO यहाँ मौजूद है, इसी कराची शहर में। आप सब जाके पूछ सकते हैं कि मैंने 6 महीने में उनसे 60 दफ़ा मुलाकात की। हर रोज़ टेलीफोन पे बात, दिन में 3 दफ़ा फ़ोन पे बात। हर तीसरे दिन अपने पास गवर्नर हाउस बुलाया कि आवाम का ये मसला, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपने अजीज़ों के इलाज के लिए 50,000 और लाख रुपए उधार मांग रहे होते हैं, कर्ज पे मांग रहे होते हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स से आपको 10 लाख रुपए की मुफ्त ये सहूलत हासिल हो, और वो कार्ड आपकी जेब में हो, आप आगा खान में जाके ये रखें कार्ड होके इलाज करो, या आप वहाँ जाके दिल धड़क रहा होता है कि कहीं हज़ारों लाखों का बिल ना बन जाए। तो अपनी कोशिश की है, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और ये करवाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। मैं आखिरी इस बात के साथ कि आज तो जौहर की मैंने सिर्फ चंद मार्केटें विजिट की हैं। मैं पूरे सिंध में हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह, हर शहर, हर गांव में इंशाल्लाह ताला जाऊंगा। और यहाँ मुझसे मिलना, जैसे अभी सक्खर वाले भाई ने कहा, मैं आया हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर जाना बहुत ही कोई बड़ा और मुश्किल काम होगा। मेरा यहाँ शायद मिलना मुश्किल हो, लेकिन गवर्नर हाउस में आना इतना ही आसान है जैसे आप अपने घर के अंदर जाते हैं। जैसे आप शाम को अपने घर चले जाते हैं, इतना ही आसान है गवर्नर हाउस के अंदर आना। इतना ही आसान है मुझसे मिलना, क्योंकि हमने ये तहिया कर लिया है कि जब तक अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है, आवाम और गवर्नर हाउस का रिश्ता अपने घर और एक फैमिली जैसा है। और इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि अल्लाह ने जब तक मुझे इस मनसब पे रखा, मैं आपके दरमियान भी आऊँगा, आपको गवर्नर हाउस भी बुलवाऊँगा। ये मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम इंशाअल्लाह इस शहर में और इस सूबे में तरक्की लेकर आएंगे। हमने जो IT का सफ़र शुरू किया है, जिसमें 4.5 लाख लोग ऑनलाइन, 50,000 लोग गवर्नर हाउस के अंदर जो कोर्सेज कर रहे हैं, अगले साल ये अपने घरों में बैठ के 20-20 लाख रुपए कमाएंगे, और अरबों डॉलर इस पाकिस्तान में आएगा, इस मईशत के अंदर आएगा। और सिर्फ यही नहीं, हम उन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जो
रक्षा चलाते हैं, जो कहीं खानसामा है, जो कहीं इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई दुकानदार है, कोई दुकान पे मुलाजमत करता है, कोई जिंची रक्षा चला रहा है, आप यकीन जाने इन सब के लिए भी गवर्नर हाउस में प्लान बन रहे हैं कि हम इनकी ज़िंदगी कैसे उसमें चेंज लेकर आए कि जो किराए का मकान में रहता है पिछले 20 सालों से, उसका अपना मकान कैसा हो, जो अपनी फैमिली को, घर के 4 बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है, वो गाड़ी में कैसे लेके जाए। कोई शख्स अगर किराए की दुकान में है तो वो उस दुकान का मालिक कैसे बने। कोई अगर मुलाजमत करता है तो उसका कारोबार कैसे शुरू हो। रात दिन गवर्नर हाउस ये काम कर रहा है। मेरे पास ये काम नहीं हो रहा कि कितने लाख झंडे बनाने हैं, कितने जलसे करने हैं, कितने लोगों से पैसे लगवाने हैं और फिर आकर आपसे झूठी बातें करनी है। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे मीडिया के दोस्त खड़े हैं, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि पिछले 15 महीनों से ये गवर्नर हाउस आ रहे हैं, मुझे कवर कर रहे हैं। एक दिन ऐसा बता दें जो मैंने आवाम और अवामी कामों में सर्फ ना किया। चैलेंज से कह रहा हूँ। आज दिन तक, कल जो हमारे पास मिलाद शरीफ में 10 लाख लोग आए, 10,000 लोग आए, आज मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे बताया आज सुबह कि 14.5 लाख लोग गवर्नर हाउस आ चुके हैं। 14.5 लाख खानदान, यानी 40 से 50 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस और उसके अंदर आकर तस्वीरें बनाई। 3 लाख लोगों ने राशन लिया, 5.5 लाख लोगों ने IT के टेस्ट दिए और 14.5 लाख लोग गवर्नर हाउस आ गए हैं। पूरे पाकिस्तान में मुझे एक हाउस बता दें जहाँ 1400 लोग भी गए हों कभी आवाम में से। हाँ, वजीर आते हैं, सफीर आते हैं, एलीट क्लास आती है, लैंड क्रूजरें आती हैं। भाई मेरा जो गवर्नर हाउस अल्लाह ने मुझे दिया है उसमें रक्शे वाला आता है, मोटरसाइकिल वाला आता है, बसेस में लोग आते हैं और वो दरवाजे पे खड़ी होती हैं। तो अगर किसी को बुरा लग रहा है, अभी फिर रमज़ान आने वाला है, पिछली बार 3.5 लाख लोगों को हमने इफ्तार डिनर अल्लाह ने करवाया, जिसमें मेरे भाई, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बड़ा मुझे तनकीद का निशाना बनाया, मीडिया के दोस्तों को पता है। तो मैं हाफिज़ साहब को पहले रोज़े की दावत दे रहा हूँ और उसमें पकोड़े भी बनेंगे, उसमें समोसे भी बनेंगे और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार लॉन में अवाम के साथ बैठ के पहला रोज़ा करूँगा। हाफिज़ साहब आपको पहले रोज़े की गवर्नर हाउस में दावत है और इस बार 10 लाख लोगों का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं और आगे भी ये सब जारी और सारी रहेगा। एक बड़ी अनाउंसमेंट आज मैं करना चाहता हूँ आवाम के लिए, कराची और सिंध के लोगों के लिए, कि सिर्फ मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन ही नहीं, हम कराची और सिंध की मुख्तलिफ सोसाइटियों को बुला के मैंने उनसे बात की है और इंशाअल्लाह ताला पहले मरहले में 600 प्लॉट 80 और 120 गज के उन लोगों के लिए जो पिछले 30 सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको ये प्लॉट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। सवाल है गवर्नर साहब, सवाल ये अख्तियार किसके पास है जो करेगा इस काम को? अख्तियार किसके पास है जो करेगा इस काम को? आप कह रहे हैं अख्तियार ही गवर्नर के पास 18वीं तरमीम के बाद कोई माली इख्तियार नहीं है। बगैर वसाइल के ये जितने भी इनिशिएटिव गवर्नर हाउस में हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ना गवर्नर हाउस का 1 रुपया शामिल है और ना ही आज तक किसी ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आप इतने बड़े बड़े आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो हुकूमत सिंध आपको ये पैसे देना चाहती है। ना हमने मांगे हैं, ना उन्होंने दिए हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। बग़ैर वसाइल के हम लोगों के साथ, कारोबारी हजरात के साथ मिलजुल कर ये आप सबके लिए कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। रमज़ान में करें।